Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with our new lecture, that is lecture number 7 for web technologies in programming. In today's lecture, we will discuss HTML links and navigation. Before proceeding to today's lecture, let's see the summary of the previous lecture. In the previous lecture, we have studied what is HTML, the basic structure of HTML page. HTML is a markup language, and we have also studied the structure of HTML, in which we have seen how web documents are related and linked. Then we have studied different tags of HTML, starting from the head tag, a title tag. Then we have seen that all that we want to display on the user screen is to be written inside the body tag. And then we have studied different tags for the text formatting, the bold tag, italic tag, underlining tag, the paragraphing tag, for line break BR tag, for creating a new line, horizontal line, that is HR tag. And then we have the strike out tag. Then we have studied superscript tag, subscript tag. So we have studied different text formatting tags. Also we have studied background color tag, font face, that is font family, font size. And in the end we have discussed different lists, definition list, description list, and then ordered list, unordered list, nested list. So this we have studied in the previous lecture. So today's we are going to discuss about HTML links. First of all, we need to know how we link different web documents, web pages of our site, how you will link different pages of your site within the same application link. These are said to be internal links. And then if you want to link any document of your website, any document of your web page to another web page of other site of third party application, then that link will be considered as external link. And then we will discuss how to structure the folders on your web application, your website. So then we will discuss in detail the way of implementation for internal documents and their link attributes, and then other types of links as well. Let's start with HTML links. HTML links are basically hyperlinks. So if you do call them hyperlinks or if you call them HTML links, both have the same meaning. So a hyperlink is basically a text or can be an image as well, to whom you want to click on and you want to jump on some other document. On a website, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक लिंक को या एक इमेज को क्लिक करें और आप एक नए डॉक्यूमेंट पे जाके आप एज ए टारगेट लिए आपका माउस नए डॉक्यूमेंट पे चला जाए, या उसी वेब पेज पे उसी डॉक्यूमेंट के बॉटम पे चला जाए, या उस इमेज को क्लिक करें तो किसी और इमेज का व्यू आ जाए, नेक्स्ट इमेज डिस्प्ले हो जाए. So these all can happen with the help of hyperlink. So hyperlink लिखने का syntax क्या है? What is the syntax of HTML links? HTML के अंदर लिंक्स को डिफाइन करने के लिए जो टैग होता है वो ए का टैग है. ये बोल्ड एंड रेड कलर में लिखा हुआ है ए का टैग.
एंड इसका लिखने का फॉर्मेट ये है, स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट ए, एच रेफरेंस, इसको स्मॉल में एच रेफ लिखा जाता है, इक्वल्स टू URL, जो भी आप अपना URL जिस एड्रेस पे आप इस लिंक को रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज, एंड लिंक टेक्स्ट, जिस वर्ड को आप क्लिक करके आप उस लिंक तक जाना चाह रहे हैं। सो एच रेफरेंस बेसिकली आपके डेस्टिनेशन URL होगा, और जबकि लिंक टेक्स्ट के अंदर आप जिस पेज से जाना चाह रहे हैं उसमें जो आप वर्ड क्लिक करना चाह रहे हैं वो आप यहां पे लिखेंगे लिंक टेक्स्ट में। इसकी डिटेल एग्जांपल्स भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सो ये एक स्मॉल सी एग्जांपल है हमारे पास HTML लिंक के। एच रेफरेंस हमने लेट सपोज w3schools.com की साइट पे जाना है, सो हमने वो URL दे दिया कंप्लीट w3schools.com/html/ और ये हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मेंशन करना है कंप्लीट URL, एंगल ब्रैकेट क्लोज, और हमने लिखा विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल, ये हमने एक करंट पेज पे दे दिया। सो करंट पेज पे लिखा होगा विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल, इसकी बैक पे ये वाला लिंक होगा। हम जब इस विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल को क्लिक करेंगे तो हमारा जो URL है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, और हम लोग जो है वो HTML की इंफॉर्मेशन वाले पेज पे, दिस पेज पे हमारा माउस चला जाएगा। सो लिंक रीडायरेक्ट हो गया एक नेक्स्ट पेज के ऊपर, एंड दिस हैपन थ्रू हाइपरलिंक और HTML लिंक, और इसको हमने किसके जरिए किया, एच रेफरेंस के एट्रीब्यूट के जरिए मेंशन किया, और डॉक्यूमेंट का जो मेंशन किया हमने नाम, वो लिंक का कंटेंट यहां पे मेंशन किया। So the crux, the major of HTML is its capacity to reference countless other pieces of information easily on the internet. तो HTML की जो लैंग्वेज है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, और इसकी वन ऑफ द मेजर ब्यूटी, वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपको बाउंड नहीं है कि आप एक वेबसाइट के अंदर कितने ज्यादा हाइपरलिंक्स कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स अनलिमिटेड हाइपरलिंक्स, सो आप जितने मर्जी लिंक्स कर लें, इट डिपेंड्स अपॉन योर वेबसाइट। और हाइपरलिंक एक इमेज है, एक टेक्स्ट है जिसको आप क्लिक करेंगे और वो जंप करके आपको दूसरे डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। हाइपरलिंक्स की ये टैग्स हैं, A is the starting tag and /A is the ending tag। ये लिंकिंग के लिए टैग है, इसके अंदर आप लिंकिंग करेंगे आइदर किसी लिंक को या आइदर किसी इमेज को। सो whenever you move the mouse over a link, over a hyperlink, two things normally happen। normally क्या होता है, either the mouse arrow will turn into a little hand, जैसे ये मेरा माउस है, आप देखिए इसको मैं मूव कर रहा हूं तो ये एरो बना रहा है। सो अगर आप किसी हाइपर लिंक पे लेके जाएंगे, लेट सपोज माउस ओवर लिंक यहां पे लेके जाएंगे, तो ये एरो की जगह हैंड की शेप बन जाएगी इसकी पॉइंटर की। सो या तो ये होगा, या द सेकेंड थिंग इज कि जब आप उसके ऊपर लेकर जाएंगे इसको, तो आप लिंक के ऊपर मूव करेंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा, लिंक का, हाइपर लिंक का कलर डिफरेंट हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस द कलर कॉन्सेप्ट्स इन हाइपर लिंक। बाय डिफॉल्ट जितने भी लिंक हैं किसी भी वेब ब्राउजर में, आइदर क्रोम है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है, बाय डिफॉल्ट उनके अंदर लिंक्स के कलर्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होती है। अगर आपने लिंक को विजिट नहीं किया, अभी आपने ओपन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट लिंक ब्लू होगा और अंडरलाइन होगा और ब्लू होगा कलर में। अगर आपने उसको क्लिक करके ओपन कर लिया, अब आप वापस प्रीवियसली आ रहे हैं उस पे जहां से आपने क्लिक किया था, तो आप देखेंगे कि ये विजिटेड लिंक था, अब इसका कलर चेंज हो गया और इसका कलर पर्पल होगा। तो द कलर इज चेंज, द कलर इज पर्पल। देन नेक्स्ट, एन एक्टिव लिंक के लिए
अगर आपका एक लिंक करंटली आप विजिट कर रहे हैं, सो उसके लिए वो लिंक रेड होगा कलर और अंडरलाइन होगा। सो अनविजिटेड के लिए ब्लू, विजिट के लिए पर्पल, इनएक्टिव के लिए रेड। कलर के जरिए आपको पता चलेगा कि लिंक अभी किस स्टेटस में था। सो विजिट लिंक के लिए आप अगर देखें तो बॉडी के अंदर आप मेंशन करते हैं विजिटेड लिंक को रेड कर दें, एक्टिव लिंक को पिंक कर दें, और आपके पास अनविजिटेड लिंक है अगर, सो उसके लिए आप ब्लू कर दें। सो ये कलर स्कीम आप चेंज भी कर सकते हैं यहां पे। स्टाइल, अब ये मजीद डिटेल है लिंक्स की। अगर एक लिंक आपने मेंशन किया अनविजिटेड है भी, सो आपका कलर सपोज आपने चेंज कर दिया, कलर ग्रीन कलर दे दिया, बैकग्राउंड को आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया, और टेक्स्ट जिसको आप क्लिक करना चाह रहे हैं उसको आप डेकोरेट करना चाह रहे हैं कि नहीं, ब्लिंकिंग करना चाह रहे हैं टेक्स्ट की, टेक्स्ट को एनिमेटेड करना चाह रहे हैं। सिमिलरली अगर आपने विजिटेड का कलर चेंज किया, पिंक कर दिया, बैकग्राउंड आपका ट्रांसपेरेंट रहा और टेक्स्ट की डेकोरेशन नहीं की। सिमिलरली एक्टिव के लिए आपने येलो कर दिया, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट रखा और कलर को डेकोरेट किया, यस अंडरलाइन कर दिया। माउस होवर के लिए भी अगर आप माउस होवर लेके जा रहे हैं तो कलर चेंज कर रहे हैं, आपने रेड कर दिया, बैकग्राउंड आपने ट्रांसपेरेंट रखा और टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया। So these are the styles for the coloring in HTML that you can proceed and go for. So when you link to another page in your own website, the link is known as internal link. When you link to different site, it is known as external link. So some other forms of links will also be discussed in the lecture. लिंक्स की दो मेजर कैटेगरीज हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे एक पेज को, सपोज पेज 1 को पेज 3 से लिंक करने जा रहे हैं, तो ये आपका इंटरनल लिंक या ये आपका लोकल लिंक कहलाता है। अगर आप अपनी वेबसाइट के पेज 1 को किसी और वेबसाइट के पेज 4 से या पेज 1 से ही कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। इंटरनल लिंक को लिखने का अपना फॉर्मेट है, सिंटेक्स है। एक्सटर्नल लिंक को लिखने का अपना फॉर्मेट है, एक अपना सिंटेक्स है। सो हमेशा याद रखिए, इंटरनल लिंक आप देना चाह रहे हैं, लोकल लिंक आप देना चाह रहे हैं, तो वो आपकी साइट को ही रेफर करना चाहिए, आपकी साइट के किसी पेज को लिंक करना चाहिए। जबकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी को करना चाह रहे हैं, किसी और वेबसाइट को, एप्लीकेशन को अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वेबसाइट के अंदर लिंक करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको एक्सटर्नल लिंक का फॉर्मेट फॉलो करना होगा। एनीथिंग बिटवीन द टैग्स, ये हमने लिंकिंग के टैग देखे थे, ए टैग, एनक्लोजिंग टैग बिकम द पार्ट ऑफ द लिंक, और इसको लिखने के साथ यूजर क्लिक करेगा तो एक हाइपर लिंक बन जाएगा। सो अ लोकल लिंक uses a page name including the sub directory if required, कि किस पेज को किस डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है एज ए टारगेट वो मेंशन करेगा, और ये करंट सर्वर का होगा, लोकल सर्वर का होगा, आपका इंटरनल लिंक के साथ इसका कनेक्शन है। ठीक है। H reference is basically the attribute in which you are going to specify the URL of the page the link goes to. Either वो internal link का URL हो, either वो external link का URL हो। H reference में आप URL वेब एड्रेस मेंशन करेंगे, टारगेट का वेब एड्रेस मेंशन करेंगे, जिस पेज से आप जिस पेज पर जाना चाह रहे हैं, जिस पेज पे आप जाना चाह रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनेशन पेज है, उसका URL, उसका वेब एड्रेस आप H रेफरेंस में मेंशन करेंगे। और अगर H रेफरेंस का एट्रीब्यूट मौजूद नहीं होगा तो आपका जो लिंकिंग के टैग है, ए का टैग, वो उसको एज अ हाइपर लिंक कंसिडर नहीं करेगा। सो आप लिंक के टैग के अंदर ए में जब H रेफरेंस लिखेंगे,
देन वो इसको एक एज अ हाइपरलिंक टैग कंसिडर करेगा, अदरवाइज उसको टेक्सचुअल हाइपरलिंक नहीं करेगा। URL एफ रेफरेंस में आप मेंशन करेंगे तो दो तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, आइदर आपका लोकल या इंटरनल URL हो सकता है, या आइदर आपका एक्सटर्नल या एब्सोल्यूट URL हो सकता है। सो आप URL कैसे मेंशन करेंगे? अगर आपने किसी थर्ड कंपनी को लिंक करना है, फॉर एग्जांपल आपकी एक साइट है www.vconcerts.edu.pk, आप इसमें एक और पेज लिंक करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप वो लॉन्च करना चाह रहे हैं हबीब बैंक की साइट को, बैंकिंग को, तो आप HBL के पेज को लिंक करना चाह रहे हैं, तो एक थर्ड पार्टी लिंक है, दैट इज एन एक्सटर्नल लिंक, और इसको हमने एब्सोल्यूट URL के तौर पे प्रेजेंट करना है। सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट h reference इज http एंड देन www.example.com, जैसे हमारे केस में था hbl.com/payment.html या default.html। सो ये हमारी साइट से किसी और साइट पे लिंक है, तो हमने जिस साइट पे जाना है उस साइट का कंप्लीट लिंक पेज की एक्सटेंशन तक .html तक हमने इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन करना है। एंड इन केस अगर ये हमारी साइट का लोकल या इंटरनल URL है, तो हम उसको कैसे मेंशन करेंगे? हमारा पेज उसी फोल्डर, उसी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रहा होगा या किसी और डायरेक्टरी में भी, तो अगर उसी विद इन द सेम डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको default.html लिख सकते हैं। अगर किसी और डायरेक्टरी में है तो उस डायरेक्टरी के रेफरेंस के साथ भी हम डायरेक्टरी का पाथ देके, फॉर एग्जांपल /subdirectory1/default.html लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास दो मेजर कैटेगरीज ऑफ लिंक्स हैं। सो लिंक करते हुए किसी एलिमेंट को हम स्पेसिफिक आईडी भी दे सकते हैं। अगर हम h रेफरेंस में टॉप पे जा रहे हैं, किसी वेब पेज में टॉप पे जाना चाह रहे हैं, तो हम उसको हैशटैग के साथ मेंशन कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल h रेफरेंस इक्वल टू #top, तो ये #top बेसिकली वो स्पेसिफिक आईडी है जिसके जरिए हम उसको लिंक कर रहे हैं। तो हमारे पास स्क्रिप्ट कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल h रेफरेंस जावास्क्रिप्ट :alert hello। सो हमारे पास इस तरह का स्क्रिप्ट बन जाएगा। ये भी हम लिंकिंग के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने एक नया पेज ऐड करना है h रेफरेंस के एट्रीब्यूट्स के अंदर, एक नया पेज हम ऐड करना चाह रहे हैं, सो हमारे ओपनिंग टैग यूज होगा और उसके बाद हम वो वैल्यू देंगे जिस पेज को हम यूज करने चाह रहे हैं और उस पेज का नाम देंगे जिससे हम लिंक करना चाह रहे हैं। सो हम सबसे ओपनिंग टैग यूज करेंगे, वैल्यू मेंशन करेंगे h रेफरेंस की, उसके बाद नाम मेंशन करेंगे जिसके जरिए हम उस पे जाना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम एंडिंग टैग मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग टैग एक स्टार्ट हुआ, h रेफरेंस जिस पे हम जाना चाह रहे हैं वो abc.html है, ये टैग क्लोज हुआ। उसके बाद हमने नाम दिया फाइल का जिसके जरिए हम क्लिकेबल करना चाह रहे हैं, तो क्लिक हियर लिख दिया, एंड देन एंडिंग टैग ऑफ लिंकिंग दैट इज /a। What is A? The A stand for anchor. So anchor tag क्या होता है? Basically anchor tag ब्राउजर को बताता है कि किसी चीज को एक साथ अटैच कर दो। So anchor tag tells the browser to anchor, to attach something to else. So anchor tag उसको रेफरेंस करने के बारे में गाइड कर रहा होता है। So every anchor tag must be started or must be ended, must have a starting anchor tag and must have an ending anchor tag. So anchor tag जो है वो ending reference के लिए भी होगा। h रेफरेंस कर रहे हैं, अब हम hypertext रेफरेंस को हमने anchor tag को यूज करना है। So जब भी हम anchor tag यूज करेंगे it means लिंक कहाँ जाएगा, इस हैश के ऊपर, इस क्लिक के ऊपर लिंक कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा। सो अब यहाँ पे आप देखें हमने अपने नोटपैड के अंदर ये लिख लिया HTML
हेड मेंशन कर दिया, उसके अंदर हेड का टाइटल दे दिया, हम इंटरनल लिंकिंग करने जा रहे हैं। फिर बॉडी के टैग्स मेंशन किए, बॉडी की टैग में हमने एक सिंपल लाइन लिखी एज अ पैराग्राफ फॉर गाइडेंस, एंड देन हमने एक रेफरेंस दे दिया कि हम इस फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे जाना चाह रहे हैं। तो एच रेफरेंस इक्वल्स टू second.html, ये हमारा सेकंड पेज बना हुआ है, और क्लिक हियर हमने वो फाइल का नेम दे दिया जहां पे हम क्लिक करना चाह रहे हैं, और उसके बाद टैग क्लोज हुआ, बॉडी का टैग एंड हुआ, HTML का टैग एंड हो गया। सो हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेकंड पेज आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पेज है, इसको हमने रेफरेंस किया फर्स्ट पेज के साथ। मीन हम फर्स्ट पेज के अंदर क्लिक हियर करेंगे तो वो सेकंड पेज पे जाएगा, और सेकंड पेज पे क्लिक हियर करेंगे तो वो फर्स्ट पेज पे जाएगा। तो हमने दोनों पेजेस को बोथ वे बैक एंड फॉरवर्ड लिंकिंग दे दी। सो इफ यू डू कंसिडर इट इज द फर्स्ट पेज टू गो टू द नेक्स्ट पेज। अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं तो हम क्लिक हियर करेंगे, तो क्लिक हियर किया तो हमारे पास वो सेकंड पेज पे चला जाएगा। नाउ एक्सटर्नल लिंक, टू लिंक द पेज ऑफ अनदर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट के अलावा कोई और वेबसाइट है, आपकी लोकल वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, ये आपका लोकल यूआरएल एड्रेस नहीं होना चाहिए, ये थर्ड पार्टी, थर्ड वेबसाइट, थर्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा। सो उसके लिए अगेन एच रेफरेंस का एट्रीब्यूट यूज होगा, ओपनिंग टैग सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप एच रेफरेंस के अंदर फुल वेब एड्रेस मेंशन करेंगे दैट यू वांट टू लिंक, और उसके बाद आप फाइल का नेम मेंशन करेंगे जिसके अंदर आप लिंकिंग करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी साइट थी, फर्स्ट पेज आपका बना हुआ था, अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा उसमें हम सेकंड पेज पे जा रहे थे। अभी हम उसी फर्स्ट पेज से लेट सपोज थर्ड पार्टी गूगल के पेज पे जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग टैग लिखा ए, एच रेफरेंस इक्वल्स टू, एंड उसके बाद कंप्लीट पाथ हमने मेंशन किया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर https:/www.google.com.pk इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और एंगल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्लिक हियर हमारा वो फाइल नेम है जिसको वो क्लिक करके हम फर्स्ट पेज से जाना चाह रहे हैं, एंड देन हमारे पास हाइपरलिंक का जो टैग है वो क्लोज हो रहा है। सो एब्सोल्यूट यूआरएल हमने देना है, कंप्लीट यूआरएल हमने देना है फ्रॉम https से लेके .pk तक, अगर हम थर्ड पार्टी के साथ एक्सटर्नल लिंक करना चाह रहे हैं। सो ये हमारा वो स्ट्रेटजी है कोड की। हमने ये लिखा HTML एक्सटर्नल के लिए, हेड मेंशन कर दिया, हेड में टाइटल में एक्सटर्नल लिंकिंग दे दी, बॉडी मेंशन कर दी दिस इज द होम पेज, टू गो टू द गूगल पेज प्लीज। एच रेफरेंस हमने मेंशन किया https://www.google.com.pk एंड क्लिक हियर, ये हमारी थर्ड पार्टी का हमने फाइल नेम मेंशन किया और टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग क्लोज हुआ, HTML का टैग क्लोज हो गया हमारे पास। सो सिर्फ डिफरेंस क्या है इंटरनल के साथ कि इंटरनल के अंदर आपको कंप्लीट पाथ, एब्सोल्यूट पाथ देने की ऑप्शन है, आप डायरेक्ट उसी डायरेक्टरी में पेज का नाम डाल सकते हैं। लेकिन इंटरनल में आप एब्सोल्यूट यूआरएल भी डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ एक्सटर्नल इट इज नेसेसरी दैट यू मेंशन ऑल द एब्सोल्यूट यूआरएल। नाउ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखते हैं, डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट क्या है इस सिस्टम में। अ डायरेक्टरी इज सिंपली अनदर नेम फॉर द फोल्डर ऑन वेबसाइट। एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, सपोज इमेजेस का एक सेपरेट फोल्डर है, वीडियोस का आपने एक अलग फोल्डर रखा हुआ है, वेब पेजेस का एक अपने सेपरेट डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। सो ये आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स को आप डायरेक्टरी कह रहे होते हैं। द एप्रोप्रिएट नेम जो है वो डायरेक्टरी ही होता है। सबसे पहले जो है आपका मेन फोल्डर होता है दैट इज कॉल्ड एज रूट डायरेक्टरी, रूट फोल्डर, और मेन डायरेक्टरी के अंदर आपके मजीद सब फोल्डर या सब डायरेक्टरीज होती हैं, या मेन फोल्डर के अंदर ही आपके तमाम वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर का एग्जिस्ट करना जो है वो सब डायरेक्टरी कहला रहा होता है। सो अब सब डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी दैट इज विद इन अनदर डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है। एंड अ पेरेंट डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी दैट कंटेन्स अनदर डायरेक्टरी। सो ये पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी होगी, जिसके अंदर और डायरेक्टरीज मौजूद हैं, और जो मौजूद वाली डायरेक्टरीज होंगी वो कौन सी होंगी, सब डायरेक्टरीज होंगी। और ये तमाम डायरेक्टरीज किसके अंदर होंगी, रूट डिक्शनरी के अंदर।
सो रूट डायरेक्टरी कौन सी वाली है आपकी? मेन डायरेक्टरी, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टरी। सो ये सब डायरेक्टरी क्या है? बेसिकली फोल्डर। सो फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स, ये आपकी डायरेक्टरीज है। और जब भी आप एक लोकल लिंक को, इंटरनल लिंक को रेफर करेंगे तो आपकी अगर सेम डायरेक्टरी में, सेम फोल्डर में आप जिसको लिंक करना चाह रहे हैं, जहां से लिंक कर रहे हैं, वो दोनों डॉक्यूमेंट पड़े हुए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ HTML के उस पेज के नाम देने की जरूरत है। बट इन केस आप उसको किसी और डायरेक्टरी के, लाइक फोल्डर 1 के किसी पेज को फोल्डर 2 के किसी पेज के साथ लिंक करने जा रहे हैं, तो आपको डायरेक्टरी के पाथ के साथ कंप्लीट मेंशन करना पड़ेगा कि फोल्डर 2 पेज 2.html आपको मेंशन करना पड़ेगा लिंकिंग के लिए। दैट्स व्हाई यू नीड टू नो अबाउट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारे पास डायरेक्टरी का। आमतौर पे डायरेक्टरीज इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती हैं। इंटरटेनमेंट के लिए आप देखें, index.html एक इंटरटेनमेंट बेस्ड वेबसाइट है, लेट सपोज। सो उसका मेन जो पेज है वो index.html है। उसके बाद एक वीडियोस का हमारे पास पेज आ गया। वीडियोस के लिए videos.html है। ये एक अलग डायरेक्टरी है और ये इंटरटेनमेंट डायरेक्टरी के अंदर है। मींस ये इंटरटेनमेंट डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी है। और वीडियोस के अंदर अलग से सेपरेटली एक और डायरेक्टरी है फिल्म्स की, ये एक और सब डायरेक्टरी है। और इसके अंदर 2 पेजेस पड़े हुए अलग से, englishfilms.html एंड urduFilms.html। ये 2 सेपरेट वेब पेजेस है। जबकि एंटरटेनमेंट में एक और डायरेक्टरी अलग से एग्जिस्ट कर रही है, audio.html। तो इफ यू डू कंसीडर, फिल्म्स एक सब डायरेक्टरी है फॉर वीडियोस, और वीडियोस जो है वो सब डायरेक्टरी है फॉर एंटरटेनमेंट, और वीडियोस जो है वो फिल्म्स के लिए एक पेरेंट डायरेक्टरी भी है, और एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस, फिल्म्स एंड सॉन्ग्स तीनों जो है सब डायरेक्टरीज हैं। और इन सारों की जो रूट डायरेक्टरी है वो एंटरटेनमेंट की डायरेक्टरी है, पेरेंट डायरेक्टरी जो है, और एंटरटेनमेंट की डायरेक्टरी जो है वो रूट डायरेक्टरी भी है इस वक्त। सो सेम डायरेक्टरी मीन्स यू वांट टू लिंक और include a resource from the same folder, same directory. So you can just use the name of the file. You don't need to mention the absolute path. But in case it is from some other directory, तो आपको उसके अंदर डायरेक्टरी का नाम भी मेंशन पड़ेगा। So for example, अगर ये किसी और डायरेक्टरी से है तो आप सब डायरेक्टरी एंड सो ऑन उस फाइल नेम तक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन केस ये बैक स्लाइड पे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट के पेज से urduFilms.html पे जाना है, सपोज यहाँ पे मैं इंडेक्स के पेज पे कोई लिंक पड़ा हुआ है फिल्म्स का, मैं क्लिक करूं तो आई वांट इट कि उर्दू फिल्म्स के पेज पे चला जाए, तो आई विल मेंशन इन दिस वे entertainment/videos/films/urdufilms.html। तो कंप्लीट मुझे डायरेक्टरी का पाथ देना पड़ेगा। और अगर मैंने वापस रोल बैक करना है प्रीवियस डायरेक्टरी पे, तो मैं इस /डॉट के साथ जो है प्रीवियस डायरेक्टरी के ऊपर वापस चला जाऊंगा। सो इस तरह मैं पेरेंट डायरेक्टरी में भी ट्रैवर्स बैक कर सकता हूं। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे लिंकिंग कर रहे हैं तो लिंकिंग कैसे करेंगे। अभी आप देखें हमारे पास कितने पेजेस मौजूद हैं इस वेबसाइट पे। ये एक एंटरटेनमेंट की साइट है, उसकी एग्जांपल स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। हमारे पास 6 वेब पेजेस मौजूद हैं। index.html, उसके बाद videos.html का पेज है, englishfilms.html का पेज मौजूद है, urduFilms.html का पेज मौजूद है, audio.html का पेज मौजूद है, एंड video.html का पेज मौजूद है। सो 1 2 3 4 5 6 पेज मौजूद है, जिसमें एंटरटेनमेंट की डायरेक्टरी के अंदर एक पेज है और 3 डायरेक्टरीज हैं। एक नेस्टेड डायरेक्टरी भी मौजूद है इसमें। और वीडियो के अंदर जो है वो एक पेज है और एक सब डायरेक्टरी है, और वो सब डायरेक्टरी फिल्म्स की है, उसके अंदर 2 पेज है। और सॉन्ग की जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टली एंटरटेनमेंट की सब डायरेक्टरी है और उसके 2 पेज मौजूद हैं। अब हमने रेफरेंस करना है इंग्लिश फिल्म्स को, तो हमने होम पेज से एंटरटेनमेंट के पेज पे लेट सपोज हमने इंग्लिश फिल्म्स को रेफर करना है, तो हम कैसे कर रहे हैं, h रेफरेंस इक्वल्स टू हम डायरेक्टरी का नाम मेंशन करेंगे, डेट इज वीडियोस का नाम मेंशन किया, /फिल्म्स सब डायरेक्टरी अगेन इसका नाम मेंशन किया, /English Films
.html, हमने उस पेज का पूरा URL पाथ मेंशन किया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया, और यहाँ पे हम मेंशन कर दे जाए वो जो भी क्लिकेबल लिंक हम बनाना चाह रहे हैं। सपोज हमने इंग्लिश मूवीज यहाँ पे लिखा, सो वो लिंक क्लिक करके वो हाइपर लिंक बन जाएगी फाइल नेम, और वो क्लिक करके आप englishfilms.html के पेज तक आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप सॉन्ग्स को करना चाह रहे हैं, सो आप होम पेज पे हैं और लेट सपोज आप सॉन्ग्स को हाइपरलिंक करना चाह रहे हैं और आप ऑडियो सॉन्ग्स को करना चाह रहे हैं, तो आपने मेंशन किया सपोज डायरेक्टरी का नेम, ठीक है, और आपने सॉन्ग्स सब डायरेक्टरी का नाम मेंशन किया एंड देन audio.html, और यहाँ पे आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं जिसको आप डायरेक्ट करके लिंक डायरेक्ट करके मेंशन करना चाह रहे हैं। सो ये आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी किस चीज की, इंटरनल लिंक करने की, इंटरनल लिंक करने की, लोकल लिंक करने की। अगर सेम डायरेक्टरी में है तो आप डायरेक्ट डायरेक्टरी का नाम दे दें, अगर किसी और डायरेक्टरी में है तो आप डायरेक्टरी के फोल्डर्स के नाम मेंशन करें, अनटिल जब तक आप उस पेज का नाम मेंशन नहीं करते जिस पेज को आप लिंक करना चाह रहे हैं, और उस पेज को आप .html के साथ मेंशन करेंगे। और इंटरनल लिंकिंग में, लोकल लिंकिंग में आप एब्सोल्यूट पाथ जो है मेंशन करना चाह रहे हैं, आप पूरा पाथ फोल्डर से लेके मेन पेरेंट फोल्डर से लेके एंड तक, तो आप मेंशन कर सकते हैं, बट इट इज एन ऑप्शनल थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट रेफरेंसिंग अ hyperlinking a web page within the local website, within the internal website. So आप जिस पेज पे जाना चाह रहे हैं उसको आप जंप पेज भी कहते हैं, इसको आप जंप पेज भी कहते हैं। So you can make this jump page into simple steps as well. What are the steps? Step 1, assign a name to the link you want to reference. आप जिस पेज को लिंक करना चाह रहे हैं उसका आप रेफरेंस दे दें, किस पे, उस पेज पे। अब कैसे है, सपोज अब मैंने एक पेज को रेफर करना है तो मैंने उसका एक नेम दे दिया, योर बुकमार्क नेम, और टैग रेफरेंस का क्लोज कर दिया। ये मैंने जंप पेज पे किया, जिस पेज पे मैंने जाना है उस पेज पे, जंप पेज पे मैंने ये काम कर दिया कि मैंने उसको ये रेफरेंस दे दिया, योर बुकमार्क नेम। और ये बॉडी के टेक्स्ट के, बॉडी के टैग के अंदर जो है मैं मेंशन करूंगा ये योर बुकमार्क का जो टैग है। अगेन ये इंटरनल डॉक्यूमेंट की रेफरेंसिंग के लिए है, इट्स नॉट फॉर एक्सटर्नल रेफरेंसिंग। अब हम क्या कर रहे हैं इंटरनल के अंदर कि हमने एक लिंक किसी जगह भी प्लेस किया अपने पेज पे जिसको हम चाह रहे हैं कि वो बुकमार्क को पॉइंट करे। सो नाउ कंसीडर href हैश के साथ हमने यूज किया योर बुकमार्क नेम। अब हमने बुकमार्क नेम मेंशन किया यहाँ पे, एंड ऐड द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड एंड क्लिक बाय द यूजर। सो यूजर बेसिकली क्लिक करेगा, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर, क्लिक हियर के बैक पे जो कोड हुआ हुआ है हैश योर बुकमार्क नेम हुआ हुआ है, और हैश बुकमार्क जो हुआ हुआ है हमारे पास, ये जो हमारे पास डेस्टिनेशन पेज है जिस पेज पे हम जंप करना चाह रहे हैं उस जंप पेज पे मेंशन हुआ हुआ है। जैसे आप देखिए प्रीवियस स्लाइड के ऊपर कि जंप पेज के ऊपर हमने मेंशन किया था कि उसका नाम क्या होगा, योर बुकमार्क नेम। सो आपने दो स्टेप्स में, एक स्टेप जो परफॉर्म करना है वो जंप पेज पे करना है, और जो दूसरा स्टेप करना है वो आपने उस पेज पे, जिस पेज से आप जंप करना जा रहे हैं उस पेज पे परफॉर्म करना है, और उसमें आपने एक href मेंशन करना है और फाइल का नाम आपने मेंशन करना है जिसको आप क्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं href के लिए। अच्छा जी, ये देखें अभी हमारे पास ये इन पेज लिंक का हमने एक फाइल खोली हुई, लेट्स सपोज उसके ऊपर हमने ये सारा टेक्स्ट मेंशन कर दिया, और इस टेक्स्ट के अंदर हमने एक रेफरेंस दे दिया ए नेम हिस्ट्री, और h1 इसकी हेडिंग दे दी। सो ये अब इंटरनल रेफरेंसिंग कर रहे हैं, एक पेज की इंटरनल रेफरेंसिंग हो रही है। अब हमने दूसरे पेज के अंदर जो नेम मेंशन किया था वो जंप पेज था हमारा, उसके अंदर हमने हैश टैग के साथ हिस्ट्री में यूज कर लिया। मैं अगेन प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूं। अब देखें ये हमारा वो पेज है जिसपे हम जंप करना चाह रहे हैं। सो जंप पेज के अंदर हम लोगों ने हिस्ट्री का टाइटल मेंशन किया हेडिंग के तौर पे, और सेकेंडली हमने वो नेम दे दिया, जैसे हमने योर बुकमार्क पेज का नाम दिया था वो नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इस हिस्ट्री को हम उस होम पेज पे यूज करेंगे हैशटैग के साथ। सो आप देखिए यहाँ पे उस पेज में जहां से आप लिंक करना चाह रहे हैं इस हिस्ट्री को हमने हैशटैग के साथ रेफर कर दिया।
हमने हैशटैग मेंशन किया, एंड इफ यू डू कंसीडर तो ये हमारे पास हिस्ट्री की क्लिकेबल हमने फाइल नेम दे दिया, जो क्लिक करेंगे इस पेज पे, ठीक है, तो वो इस हैशटैग की हिस्ट्री को यूज करते हुए उस जंप पेज की हिस्ट्री के ऊपर चला जाएगा। सो एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अगर हम चाह रहे हैं कि हम रेफर्स कर सकें, अगर हमने पेज 1 से पेज 2 पे रेफर करना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम पेज 2 के बॉटम में चले जाएं, पेज 2 के उस एक स्पेसिफिक इमेज पे हम चले जाएं, पेज 2 की सर्च बॉक्स के ऊपर हम चले जाएं, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होगा? सो असाइनिंग अ नेम टू द लिंक, ये स्टेप 1 है। ये भी 2 स्टेप्स में होगा। अगर किसी सेकंड पेज के ऊपर स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है, फॉर दैट वी नीड टू डू अगेन इन 2 स्टेप। व्हाट इज द स्टेप 1? असाइन अ नेम टू द लिंक। फॉर एग्जांपल अ नेम इक्वल्स टू लोकेशन नेम। ये हम किस पे कर रहे होंगे? जंप पेज पे कर रहे होंगे। प्लीज कीप इन माइंड दिस विल गोइंग टू हैपन इन अ जंप पेज। ये क्या है? लोकेशन नेम हम मेंशन कर रहे हैं। अभी वो लोकेशन पे जा रहा है, ठीक है। और स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं? लिंक टू दैट पेज, किधर? लोकेशन में। सो अब आप देखिएगा लोकेशन नेम अलग है और पेज नेम अलग है, डोंट मिक्स अप, ठीक है। सो अब मैंने लिंक टू दैट पेज में एच रेफरेंस के अंदर पहले उस पेज का नाम दिया, लाइक पेज 1 से अगर मैंने पेज 2 पे जाना है तो पेज 1 में मैं ये एच रेफरेंस का कोड लिख रहा हूं, यहां पे मैं पेज 2.html लिखूंगा। हैश लोकेशन नेम में मैं वो नेम दूंगा जो मैंने यहां लोकेशन नेम में मेंशन किया था, एंड इसको मैं क्लिकेबल बनाने के लिए कोई भी फाइल का नेम दे दूंगा जिसको मैं क्लिकेबल बनाना चाह रहा हूं। तो अब मैं मेरा जो पेज 1 के ऊपर मैं इसको क्लिक करूंगा, जो क्लिक हियर मैंने लिखा, तो पहले ये पेज 2 पे जाएगा एंड देन फ्लो मूव करेगा उस एग्जैक्ट लोकेशन नेम पे जो मैंने पेज के अंदर मेंशन की है। सो अभी हमारे पास कोड कैसे होगा? इफ यू डू कंसीडर, सो एच रेफरेंस इन पेज लिंक डॉट HTML, इस पेज पे मैं जाना चाह रहा हूं। हैश हिस्ट्री, ये एक हेडिंग है HTML पेज पे। हमने प्रीवियस एग्जांपल में पेज 1 से पेज 2 को हिस्ट्री के जरिए लिंक किया। सो हिस्ट्री इज मेंशन्ड एज अ हेडिंग ओवर देयर। सो हैश हिस्ट्री, उसका लोकेशन नेम हिस्ट्री का जो है वो मैंने डेस्टिनेशन पेज या जंप पेज के कोड में मेंशन किया हुआ है। सो इन पेज लिंक डॉट HTML यानी कि इस पेज पे जाए एंड इस पर्टिकुलर हिस्ट्री, इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर चला जाए और क्लिक हियर, मेरे पास वो टेक्स्ट है, सो क्लिक करने से ये एक्शन परफॉर्म होगा। और मैंने हिस्ट्री के पेज के ऊपर क्या किया हुआ है? इफ यू डू कंसीडर, ये मेरा पेज था, जंप पेज था जहां पे मैं पहुंचा। इस पेज के अंदर मैंने एक तो हेडिंग बनाया हुआ है हिस्ट्री को, हेडिंग 1, और इस हेडिंग का मैंने लोकेशन नेम दिया हुआ है हिस्ट्री। सो वो हिस्ट्री आप देखें, अगर प्रीवियस स्लाइड में जाए तो हम ये मैंने हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन कर दी है उसकी लोकेशन। सो इस तरह हमारे पास जो है जंप पेज की लोकेशन नेम के ऊपर भी हम जा सकते हैं। एग्जैक्टली हम उस लोकेशन पे अगर जाना चाहे तो वी कैन गो टू द जंप पेज लोकेशन एज वेल। अब ये जो हमारे पास टारगेट है, टारगेट पेज जो हमारे पास है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, और हम उन एट्रीब्यूट्स को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमने पेज को कहां पे ओपन करना है। वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास ओपन करने के लिए, उस एग्जांपल को देख लेते हैं। सो दिस एग्जांपल विल ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू ब्राउजर विंडो और इन अ न्यू टैब। सो अब देखिए एच रेफरेंस मेंशन किया हमने, उसके अंदर abc.html, ये वो पेज है जिसके ऊपर हम जंप करना चाह रहे हैं, एंड टारगेट हमने मेंशन कर दिया क्या? अंडरस्कोर ब्लैंक। सो ये हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है जो हमने मेंशन कर दिया कि टारगेट कहां पे ओपन हो। जब हम एक पेज को दूसरे पेज पे जंप करके ओपन करवाना चाह रहे हैं तो हम डिसाइड कर रहे हैं क्या वो उसी पेज के अंदर लिंक ओपन हो जाए जिसपे हम करंट थे, या वो एक नई विंडो में ओपन हो जाए, या वो एक नए टैब में ब्राउजर के ओपन हो जाए। सो फॉर दैट पर्पसेस हमारे पास टारगेट का जो एट्रीब्यूट है वो हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। सो अभी हमने एक पेज, सपोज पेज 1 से abc.html पेज 2 को ओपन करने की कोशिश की, और वो कहां पे ओपन होना है उसका टारगेट हमने ब्लैंक मेंशन किया। अब ये कौन कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे? सो सबसे पहले हमारे पास अंडरस्कोर ब्लैंक है, इट ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। अगर आप पेज 1 से चाह रहे हैं
कि पेज 2 के ऊपर आप डायरेक्ट करें और पेज 2 जो है वो एक नई विंडो में ओपन हो जाए, तो आप लिंक के साथ टारगेट को अंडरस्कोर ब्लैंक की फॉर्म में मेंशन करेंगे। अंडरस्कोर ब्लैंक जो है वो एक नई विंडो के अंदर ओपन करेगा। ये टारगेट की एट्रीब्यूट की वैल्यू है। एक और वैल्यू हो सकती है आपके पास अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर सेल्फ क्या करेगा? इट विल ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम फ्रेम एज इट वाज क्लिक। दिस इज डिफॉल्ट। अगर आप टारगेट के ऑब्जेक्ट को पहली बात है कोई वैल्यू नहीं देंगे तो डिफॉल्ट में सेल्फ का एट्रीब्यूट ही होता है, सेल्फ की वैल्यू होती है टारगेट के एट्रीब्यूट के लिए। अगर आप क्लिक करेंगे और आपने सेल्फ का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या बाय डिफॉल्ट सेल्फ का ऑब्जेक्ट है, तो उसी पेज के अंदर जो आप टारगेट का पेज खोलना चाह रहे हैं, जंप पेज जो खोलना चाह रहे हैं, वो पेज वहीं पे ओपन हो जाएगा। एक नई विंडो में, एक नए टैब में नहीं आएगा। पेरेंट, अगर आप चाह रहे हैं कि आप लिंक डॉक्यूमेंट को एक पेरेंट के फ्रेम के अंदर ओपन करें, जहां पे आप था वहीं पे आपका मेन हेडर, आपकी वही मेन स्ट्रक्चरिंग रहे, लेकिन पेज वहां पे ही एज अ फ्रेम के तौर पे ओपन हो जाए, तो आप पेरेंट के टैग को यूज करेंगे। इसके लिए आपकी डिजाइन की कंसिस्टेंसी होना भी जरूरी है। सब पेरेंट का टैग मेंशन करेंगे। ऑन टॉप, अगर आप ये चाहते हैं कि टॉप का टैग यूज करें, तो टॉप का टैग क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? इट विल ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। वो कंप्लीट विंडो में ओपन हो जाएगा फुल। ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी उस पेज के ऊपर होगी कंप्लीटली वो रिप्रेजेंट हो जाएगी उस विंडो के ऊपर। एंड फ्रेम नेम, अगर आप लिंक डॉक्यूमेंट का कोई फ्रेम का नाम देना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, और उसमें आप चाह रहे हैं कि ओपन हो, तो आप स्पेसिफिक फ्रेम का नाम दे देंगे, वो पर्टिकुलरली उसी फ्रेम के अंदर ही ओपन करेगा। बेसिकली ये हमारे पास टारगेट के एट्रीब्यूट्स हैं। एंड इफ यू गो टू द बैक स्लाइड, वी कंसीडर कि यहाँ पे हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, ब्लैंक मेंशन कर सकते हैं, सेल्फ, पेरेंट, टॉप। तो फ्रेम नेम के अलावा बाकी सब में अंडरस्कोर है और उसके बाद हम मेंशन कर रहे हैं। ब्लैंक नई विंडो में ओपन कर रहा है, सेल्फ जो है हमारे पास वो एग्जिस्टिंग विंडो में ओपन कर रहा है, और पेरेंट जो है वो लिंक कर रहा है पेरेंट फ्रेम के साथ, और टॉप जो है फुली विंडो में बॉडी को ओपन कर रहा है, और फ्रेम नेम के साथ आप एग्जैक्ट फ्रेम नेम मेंशन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके टारगेट को जाके आपका जो पेज आपने रेफर किया उसको ओपन करवा रहा होगा। एक्सेस की क्या है? अब इसको देख लेते हैं एक्सेस की को। ये और एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, लिंकिंग के एट्रीब्यूट्स हैं। टू एक्सेस द लिंक, आप किसी को भी एक्सेस करने जा रहे हैं, किसी वर्ड के जरिए एक्सेस करने जा रहे हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू। रेफरेंस आपने मेंशन किया, एक दूसरा आपने पेज दे दिया, abc.html इक्वल्स टू एक्सेस की इक्वल्स टू a, और आपने इसको मेंशन कर दिया जो भी क्लिक हियर। अब आपके पास क्या होगा? a का जो टैग है, ए का जो वर्ड है आपने एक्सेस की के लिए वो आपने मेंशन कर दिया, तो वो ए एक्सेसिबल हो जाएगा टू एक्सेस द लिंक करने के लिए। अगर आपने एक इंडेक्स के सिलेक्ट करना है, व्हेन इंडेक्स शुड बी सिलेक्टेड, तो आप क्या मेंशन कर रहे हैं इंडेक्स को सिलेक्ट करवाने के लिए? इफ यू डू कंसीडर, एच रेफरेंस टैब इंडेक्स इक्वल्स टू 1, तो आप चाह रहे हैं कि वो इंडेक्स 1 के लिए सिलेक्ट हो जाए, वो आपके लिए इंडेक्स 1 सिलेक्ट करके डिस्प्ले कर देगा। और अगर आप टाइटल चाह रहे हैं, लिंक का टाइटल शो हो जाए, ठीक है, उसके ऊपर, तो आप लिख रहे हैं टाइटल इट्स अ लिंक, तो इट्स अ लिंक का जो टाइटल है वो आपके पास शो हो जाएगा। आपके पास ये मजीद सब एट्रीब्यूट्स हैं एक्सेसिंग द लिंक के लिए, और आप इंडेक्स जिसको सिलेक्ट चाह रहे हैं वो इंडेक्स सिलेक्ट हो जाए, और आप टाइटल चाह रहे हैं वो आपका शो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक वेब पेज है, उसके अंदर लेट सपोज आपके पास बुक्स है, आपके पास 15 बुक्स हाइपर लिंक के फॉर्म में लिंक्ड हैं, और आप चाह रहे हैं नंबर 14 के ऊपर आप जो है वो सिलेक्ट कर लें। आप ये इंडेक्स कर रहे हैं टैब इंडेक्स, आप उसको क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर 14 के ऊपर ही सिलेक्ट करके आपको बता देगा। अगर आप उसका टाइटल चाह रहे हैं तो वो क्लिक करने के ऊपर जो उसका टाइटल होगा, इसका लिंक टाइटल, वो उसको शो करवा देगा आपके। नाउ सी द एग्जांपल, एच रेफरेंस first.html इस पेज के ऊपर जंप कर रहा है पेज, टैब इंडेक्स आपने दे दिया 2, टारगेट आपने कहा सेल्फ इसी के अंदर ओपन होना चाहिए, टाइटल आपने इसमें दे दिया दिस इज द फर्स्ट लिंक, ये क्लिक करके बना दिया, और एक्सेस की आपने दी दी A, और उसके बाद आपने क्लिकेबल फर्स्ट लिंक को बना दिया। अब क्या आएगा?
आप फर्स्ट लिंक को क्लिक करेंगे, first.html का पेज खुलेगा, टैब इंडेक्स 2 को देखते हुए वो उसी टारगेट के अंदर उसको डिस्प्ले करेगा और इसका टाइटल आ जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास अलग से कुछ लिंक्स हैं, डाउनलोड लिंक है आपके पास। व्हाट इज द डाउनलोड लिंक? डाउनलोड लिंक attribute specifies the target that will be downloaded when a user clicks on the hyperlink, and this attribute is only used if the hrefs attribute is set and there are no restriction on allowed values। जब आपने hrefs के लिए डाउनलोड लिंक को मेंशन किया होगा तभी एट्रीब्यूट यूज होगा। और ये कैसे यूज होगा? फॉर एग्जांपल आपने किसी और लिंक के पेज को लिंक किया हुआ है, जंप पेज है, और वहां पे आपने किसी फाइल को लिंक कर दिया, लेट्स सपोज आपने पीडीएफ फाइल को लिंक कर दिया, और आप ये चाहते हैं कि जब हम इसको क्लिक करें तो डायरेक्ट वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाए, तो इसको आप डाउनलोड लिंक बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक होम पेज है, फर्स्ट पेज है, अब आपके पास एक दूसरा पेज है, दैट इज सेकंड पेज, और सेकंड पेज पे एक पीडीएफ फाइल है, द फाइल इज सपोज abc.pdf। अब आप चाहते हैं कि आप पेज 1 पे एक वर्ड मेंशन करें, लेट्स सपोज क्लिक हियर। जो ही आप क्लिक हियर करें तो वो लिंक रीडायरेक्ट होकर पेज 2 पे जाए, और पेज 2 में जबकि फाइल थी abc.pdf वो क्लिकेबल हो जाए और वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए, ऑटो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाए। फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज डाउनलोड लिंक। और इसके अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपकी वैल्यूज की, कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो डाउनलोड जो है वो आपका इतने देर में डाउनलोड हो या आपकी इस वैल्यू के साथ रिस्ट्रिक्ट करते नहीं। सो ये लिंक जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में और सफारी ब्राउजर में सपोर्टेड नहीं है। सो इफ यू वांट टू यूज सच सॉर्ट ऑफ लिंक, you can also use it for the images, for text files, for videos, for PDF files and so many other। so आप इसको Firefox के साथ, Chrome के साथ, ब्राउजर जो है आपके, इनके साथ आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे और आपकी सक्सेसफुल फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। so hrefs equals to images slash my w3 schools image.jpg डाउनलोड। सबने डाउनलोड का टैग इसको मेंशन कर दिया, साथ ही आपने जो भी पाथ था ये उसी डायरेक्टरी के अंदर थे, दैट रेफरेंस में आपके पास सब डायरेक्टरी, और फिर अपने फाइल का नाम मेंशन किया। सो इट कैन बी रिटन एज अ डाउनलोड फाइल नेम भी। आप ये जो डाउनलोड आपने मेंशन किया उसमें आप फाइल नेम भी मेंशन कर सकते हैं। सो डाउनलोड में फाइल नेम जो भी है, सपोज आप abc.pdf आपकी फाइल थी, आपकी फाइल का नाम तो है flowers.jpg इमेज की फाइल थी, आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं, आप उसको भी यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं, अपनी जो भी फाइल आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। अगर आप ईमेल करना चाह रहे हैं, इन केस यू वांट टू सेंड एन ईमेल, और आप चाह रहे हैं कि आप जब क्लिक करें तो मेल ओपन हो जाए आपकी रेलिवेंट, तो उसके लिए आपका मेल टू का जो है वो लिंक है। ये मेल सेंड करने के लिए है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके वेब पेज के ऊपर कहीं पे क्लिक किया जाए और उसको क्लिक करने से एक ईमेल का आपका जो टैब है वो ओपन हो जाए, मोस्टली जो है वो MS आउटलुक के अंदर बाय डिफॉल्ट जो ईमेल एड्रेस है वो ओपन हो जाता है। इफ योर ब्राउजर इज सेशन के साथ भी लिंक किया जाता है। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं अपने ईमेल सर्वर में, तो बाय डिफॉल्ट वो लिंक रीडायरेक्ट करके आपके ईमेल सर्वर के साथ जो है वहां पे कंपोज मेल में आपको रीडायरेक्ट करवा देगा। तो फॉर एग्जांपल आपने इसको अगर लिंक करना है तो कैसे मेंशन हुआ है कि a=hrefs इक्वल्स टू मेल टू आपका जो है ये पर्टिकुलर वो एट्रीब्यूट है ईमेल के लिए, कॉलन ये वो ईमेल एड्रेस है जिसको आप चाह रहे हैं कि वो ओपन हो जाए। सो webmaster@example.com, फॉर एग्जाम्पल आप एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख रहे हैं info@vcomsets.edu.pk। सो उसके बाद आपकी ब्रैकेट क्लोज है और उसके बाद ये आपने लिखा जॉन डॉय सपोज आप बनाना चाह रहे हैं कि मेल टू इसको चले जाए। तो जब आप क्लिक करेंगे जॉन डॉय को, तो सपोज आपने MS आउटलुक के अंदर अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस सेटल की हुई हैं तो MS आउटलुक ओपन हो जाएगा और उसके कंपोज ईमेल में जो 2 का कॉलम होगा उस 2 के बॉक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट आपका आ जाएगा info@vcomsets.edu.pk और वहां से आप अपनी ईमेल कंपोज करके सेंड कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि आपको कंपोजिंग के ईमेल एड्रेस पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको हाइपरलिंक डायरेक्ट जो है वो वहीं से आप उसको ईमेल कर सकते हैं। फीडबैक देने के लिए, कॉन्टैक्ट अस देने के लिए वेबसाइट्स में मोस्टली आप मेल टू यूज करते हैं। सपोर्ट की कम साइट्स के ऊपर अक्सर क्लिकेबल होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी ईमेल ओपन हो जाती है और आप वहीं से अपनी ईमेल को सेंड कर देते हैं जो भी रेलिवेंट बॉक्स होता है। सब इसका कोड देखते हैं।
सो डॉक्यूमेंट टाइप HTML5 का हमारे पास कोड मेंशन है HTML, उसका स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, उसके बाद बॉडी के टैग के अंदर पैराग्राफ, बॉडी के टैग का यूजर को डेटा डिस्प्ले होगा। दिस इज मेल टू लिंक, हमने मेंशन कर दिया एक्सप्लिसिटली पैराग्राफ में ताकि हमें पता चले। और आप ये देखिए दिस इज मेल टू लिंक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट H रेफरेंस मेल टू, हमने फॉर एग्जांपल मेल टू में लिख दिया someone@example.com, ये कोई एक ईमेल एड्रेस है एग्जांपल के तौर पे। टारगेट हमने मेंशन किया टॉप। अब टॉप के साथ आपने कंसीडर करना है कि वो कहाँ लेके जाएगा, ठीक है, पूरे पेज में फुली ओपन कर देगा। एंड सेंड मेल हमने हाइपरलिंक कर दिया। सो यहाँ पे वो वर्ड मेंशन किया जो क्लिकेबल हमने बनाना है। सो इफ यू डू कंसीडर अवर हेयर, सेंड मेल को जब क्लिक किया जाएगा तो क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग ऑफ डेट पर्टिकुलर सिस्टम, वो उसके कंपोज ईमेल में चला जाएगा और जो कंपोज्ड ईमेल है उसको मेंशन कर देगा और वहां पे आप अपना रेलिवेंट कंटेंट लिख के सेंड प्रेस कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आपका पैराग्राफ का वर्ड आ रहा है, ये बेसिकली आपका क्लिक के ऊपर हाइपर लिंक है। इस हाइपर लिंक के पीछे आपका मेल टू का एट्रीब्यूट यूज हुआ है और मेल टू के लिए एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस यूज हुआ है एंड इसके साथ आपका टारगेट का एट्रीब्यूट है जो उसी विंडो में आपको जो है ओपन करवा देगा फुली कंप्लीटली जो टॉप के एट्रीब्यूट की कैरेक्टरिस्टिक्स है और आप डायरेक्टली एक फुली विंडो ओपन में वहां पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप अपनी ईमेल लिख के सेंड कर सकते हैं। So what is the summary of today's lecture? In today's lecture we have seen how to use the HTML A tag element to defining a link. So सबसे पहले हमने देखा कि hyperlink जो है या HTML link ये एक ही चीज है। HTML link are also said to be hyperlink और HTML link या hyperlink के लिए हम A का टैग यूज करते हैं और A जो है ये basically it stands for anchor, it means to attach with और A का एक starting टैग है और A का एक ending टैग है। उसके बाद हमने देखा कि हमने जब भी किसी को लिंक को यूज करना होगा तो सबसे पहले हम एक टैग के अंदर H रेफरेंस करते हैं एंड H रेफरेंस के बाद हम लिंक को मेंशन करते हैं। सो H रेफरेंस के अंदर हम लोग एक लिंक को मेंशन करेंगे, वो लिंक हमारा इंटरनल लिंक होगा, लोकल लिंक होगा या वो लिंक हमारा एक्सटर्नल लिंक होगा। जबकि लिंक के अंदर हम वो फाइल का नाम, वो वर्ड लिखते हैं जिसको हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं और हमारे पास इंटरनल लिंक अगर मौजूद है तो उसके लिए अगर हमारा लोकल लिंक है तो हम डायरेक्ट फाइल का नाम मेंशन कर देंगे, हमें उसके कंप्लीट फोल्डर देने की जरूरत नहीं। इफ इट इज इन द सेम डायरेक्टरी, देन इफ इट इज इन द डिफरेंट डायरेक्टरी तो हमें डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर को देखा, उसमें हमने देखा जो मेन डायरेक्टरी है वो हमारी रूट डायरेक्टरी कहलाती है, उसके अंदर हमारी डिफरेंट डायरेक्टरीज होती हैं और एक डायरेक्टरी के अंदर जब दूसरी डायरेक्टरी होगी इनसाइड तो इनसाइड वाली डायरेक्टरी हमारी सब डायरेक्टरी कहलाती है और जब हमारी मेन डायरेक्टरी है वो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी कहलाती है। और अगर आप एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी के किसी पेज को हाइपर लिंक करना चाह रहे हैं तो फिर आपको डायरेक्टरीज के पाथ को भी कंसिडर करना पड़ेगा, आपको विद पाथ आपको मेंशन करना पड़ेगा और इसकी डिटेल जैसे हमने एंटरटेनमेंट वीडियोस वाली डायरेक्टरीज में देखी थी। फिर इसके साथ साथ हमने जो है वो एक्सटर्नल लिंकिंग को भी देखा। एक्सटर्नल लिंक के लिए हमने इस चीज को कंसिडर किया कि जब आप किसी थर्ड पार्टी को लिंक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक्सटर्नल लिंक यूज करते हैं और थर्ड पार्टी के लिए जब आप एक्सटर्नल लिंक यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको एक कंप्लीट पाथ मेंशन करना पड़ता है, एक एब्सोल्यूट पाथ मेंशन करना पड़ता है। उसके लिए फॉर एग्जांपल हमने गूगल की एग्जांपल देखी थी, गूगल का हमने पूरा पाथ मेंशन किया था https://www.google.com और उसको हमने एक क्लिक हियर का नाम दे दिया और क्लिक हियर करने पे वो गूगल के ऊपर ओपन हो रहा है। उसके अलावा हमने HTML के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि HTML में एक पेज से अगर आपने दूसरे पेज पे लिंक करना है, उस पेज की पर्टिकुलर लोकेशन को आपने क्लिक करना है तो उसमें अपने लोकेशन नेम को यूज किया। लोकेशन नेम के अंदर आप मेंशन कर रहे होते हैं, आप मेन पेज पे आप मेंशन कर रहे होते हैं लोकेशन नेम को और उस लोकेशन नेम को आप रेफरेंस कर रहे होते हैं अपने हैशटैग के साथ दूसरे पेज के ऊपर। सो उसके लिए हमने योर बुकमार्क पेज की एग्जांपल देखी, उसमें हमने लोकेशन मेंशन की थी और वो पर्टिकुलरली दूसरे जंप पेज पे रीडायरेक्ट करके लोकेशन नेम के ऊपर आपको लेकर जा रहा होगा। ये एक एट्रीब्यूट हमने मूव करवाने के देखा। उसके अलावा हमने ये देखा कि आप कहाँ कहाँ ओपन करवाना चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं जब आपका जंप पेज हो तो वो आपकी सेम विंडो के अंदर ओपन हो रहा हो, या आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो जंप पेज है वो ओपन करे तो वो आपकी न्यू पेज में ओपन, न्यू विंडो के अंदर ओपन करवाना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आप करंट पेज के अंदर ही उसी विंडो के अंदर ही फ्रेम के अंदर आप ओपन करवाएं। सो ये आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे,
ठीक है, पेरेंट के अंदर आप करवाना है, अपने सेल्फ के अंदर आपने करवाना है, टॉप में आपने ओपन करवाना है, सो किस फ्रेम में आपने करवाना है, वो टारगेट का एट्रीब्यूट होगा। सो टारगेट की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, आप जंप पेज के साथ टारगेट को मेंशन करेंगे और टारगेट जो है वो पर्टिकुलरली आपको बता रहा होगा कि आपने किस जगह पे जाके जंप पेज को ओपन करवाना है, फुल ओपन करवाना चाह रहे हैं या आप नई विंडो में ओपन करवाना चाह रहे हैं, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स है टारगेट के। उसके अलावा हमने जो देखा वो हमने डाउनलोड के लिंक को देखा कि आप डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं अगर, तो आप एक फाइल में डाउनलोड को मेंशन कर सकते हैं, सेम डायरेक्टरी से भी आप करवा सकते हैं डाउनलोड, दूसरे डायरेक्टरी को भी आप डाउनलोड करवा सकते हैं। उस डाउनलोड के अंदर आप एक दूसरे आप चाह रहे हैं कि एक आप क्लिक करें तो एक फाइल पर्टिकुलरली डाउनलोड पे चली जाए, तो वो आप डाउनलोड उसको लिंक बना देते हैं और उसके बैक पे आप जो लिंक है डाउनलोड का वो आप मेंशन कर देते हैं, फाइल का नाम आप मेंशन कर देते हैं एब्सोल्यूट पाथ के साथ। इसके साथ साथ जो हमने आज के लेक्चर के अंदर स्टडी किया वो हमने आज के लेक्चर के अंदर डिफरेंट हमने ये भी स्टडी किया कि हमारे पास अगर हमने ईमेल करनी है डायरेक्ट, तो हम चाहे किसी लिंक को ईमेल करके हाइपर लिंक करना चाह रहे हैं तो वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्लिकेबल बना सकते हैं किसी भी लिंक को, एक हाइपर लिंक को। उसके लिए हमें एक पेरेंट पेज के अंदर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, उसका ईमेल टू का जो है वो हम मेंशन करेंगे और उसके बाद वो जो ईमेल एड्रेस है वो हम मेंशन करेंगे और क्लिकेबल हम बनाना चाह रहे हैं। तो जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली अगर सपोज MS आउटलुक की सेटिंग है तो वो आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने टेबल की किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर हमने जाना है, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट के एक दूसरे पेज पे हम जाना चाह रहे हैं, उस पर डिफरेंट बुक्स लिस्ट हुई हुई है और हाइपर लिंक्ड है, तो हम स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ये डिफॉल्ट हमारा कर्सर वहीं पे मूव किया ले जाए और उस इंडेक्स की उस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट हो जाए, वो हमने देखा। और इसके साथ साथ हमने स्टार्ट में कलर्स के बारे में भी देखा था कि बाय डिफॉल्ट हमारे कुछ कलर स्कीम है विजिटेड लिंक के लिए, अनविजिटेड लिंक के लिए, और इसके साथ हमारे पास जो है वो एक डिफॉल्ट अगर लिंक अनविजिटेड आफ्टर विजिटेड अगर हो जाता है तो उसका क्या होगा और विजिट नहीं हुआ उसका क्या कलर होगा। फिर माउस होवर के ऊपर हमने थोड़ा सा देखा कि अगर माउस होवर करेंगे तो उसके कलर जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो ये हमारे लेक्चर। फिर उसके बाद हमने इमेजेस को देखा कि इमेज के साथ अगर आप लिंक करना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट को तो उसको हमने डिस्कस किया। इमेज का आप नाम देंगे इमेज की एक्सटेंशन के साथ और उसको आप लिंक कर देंगे इमेज के साथ, तो आप इमेज को क्लिक करेंगे तो वो हाइपर लिंक आपको कर देगा। सो ये हमारे आज की समरी थी इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स में आप ध्यान में रखिएगा ये आपकी सेम डायरेक्टरी में होते हैं इंटरनल लिंक्स, लोकल लिंक्स, और इसके अंदर अगर आप फाइल का नाम दें तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, प्लस आप इसके साथ फोल्डर का नाम डायरेक्टरी के नाम के साथ भी आप जाके फाइल बता सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर होता है, एब्सोल्यूट पाथ आपने मेंशन करना होता है एच रेफरेंस के अंदर, आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने देखा, उसके अंदर हमने रूट डायरेक्टरी को डिस्कस किया, रूट डायरेक्टरी के अलावा हमने पेरेंट डायरेक्टरी को डिस्कस किया, सब डायरेक्टरी को डिस्कस किया। एंड डायरेक्टरी इज बेसिकली अनदर नेम फॉर द फोल्डर। उसके बाद इंटरनल डॉक्यूमेंट में हमने रेफरेंस करना है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम उसकी रेफरेंसिंग कैसे कर रहे हैं। उसके साथ हमने कुछ एट्रीब्यूट्स भी देखे थे। लोकेशन अगर स्पेसिफिक आप चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसी पेज की टॉप पे आप चले जाएं, और इसी तरह आप उसके साथ साथ अगर किसी और थर्ड एट्रीब्यूट में आप जा रहे हैं सेकंड पेज के आप और एट्रीब्यूट्स आपने देखे तो अपने एज अ टारगेट यूज करने हैं। ओपन करवाने के लिए कहाँ पे आप ओपन करवाना चाह रहे हैं तो आप उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हमने स्टडी किया, डिस्कस किया। और इसके साथ साथ हमने एंड में जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे जो हमने देखे वो हमने देखे डाउनलोड्स के, ईमेल के। डाउनलोड के हमारे पास आप हाइपरलिंक आप ऑटो डिफॉल्ट बनवा सकते हैं, ईमेल के लिए आप ऑटो डिफॉल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एंड इसमें विजिटेड, अनविजिटेड एंड अभी एक्टिव लिंक जो है वो भी आपने इसमें कंसिडर की। और इसके अंदर एच रेफरेंस को भी आपने देखा कि एच रेफरेंस के अंदर हमेशा URL डालते हैं और लिंक जो है वो उसके अंदर हमेशा हमारे पास जो है वो क्या मेंशन होता है जिसको आप क्लिकेबल बनाना चाह रहे हैं। सो मल्टीपल वेब पेजेस को, वेब डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने के लिए, हाइपर लिंक करने के लिए आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज किया, ये हमारे आज के लेक्चर का कंटेंट था। और इसको हमने डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी किया और इसको कंसिडर करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हाइपर लिंकिंग को लेके जाएंगे और मजीद इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी इंटीग्रेट करेंगे।
So this is all about today's lecture. Thank you for listening today's lecture.